اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، مگر آپ پابندی کے ساتھ 200، 500، 1000 جو بھی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ اور ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے، رات میں 9:30 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے، تو آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ تو آج ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ہمارے پرک، ہمارے اسلاف، ہمارے باپ دادا نے اس ملک کو بچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں اور یوگدان دیا ہے، اس کو بھی آپ ضرور سنیے گا، کیونکہ اب سنایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ آپ کے اور میرے بزرگوں کی داستانوں، ان کی کہانیوں، ان کے یوگدان، ان کے قربانیوں کو دلال میڈیا کے ذریعے سے بھی اور سلیبس میں سے بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ بڑی بدماشی کی جا رہی ہے، اور جو اس وقت میں انگریزوں کے وعدہ ماب گواہ تھے، وفادار تھے، انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے تھے، جن کا آزادی سے دور دور تک کے کوئی آزادی کی جنگ سے کوئی تعلق نہیں، آج وہ بھاگیدار بن رہے ہیں، حصہ دار بن رہے ہیں، اور ہم کو دیش بھکتی کا ثبوت دینے کی وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں، اور کیا کہیں۔ تو آج سچی تاریخ آپ بھی سنیے گا اور اپنی اولاد، اپنی نسلوں کو بھی سنائیے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اور ان کا بھی سر فخر سے اونچا ہو سکے کہ ہمارے باپ دادا نے اس ملک کو کیسے کیسے قربانیاں دے کر بچایا ہے۔ تو رات کو 9:30 بجے آپ بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے فلسطین کے حالات کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ میں لگاتار آپ کو 5 دنوں سے اسرائیل کے آتنکواد کی ساری خبریں اور اسرائیل کے ظلم کی ساری خبریں، فلسطینیوں کے ساتھ کس طریقے سے معصوم بچوں اور بچیوں کو اسرائیل مار رہا ہے، وہ تمام چیزیں میں آپ کو دکھا رہا تھا، اور میں عالم اسلام سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری غیرت یا شرم مر چکی ہے۔ اسرائیل کے خلاف قدم اٹھاؤ، اسے روکو۔ ابھی فی الحال خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ چلو، بہت اچھی بات ہے کہ سعودی عرب نے کم از کم یہ تو کہا کہ اسرائیل حملے بند کریں، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے، جہاں سعودی یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے بار بار حملوں اور خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں بین الاقوامی برادری ادا کریں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا صرف بیان دینے سے کام نہیں چلے گا،
बल्कि इस्लामी मुल्कों ने थोड़ा सा सख्त कदम उठाया तो इजराइल तो क्या, इजराइल तो छोटा सा नाजायज पैदाइश है, नाजायज पैदावार है। इजराइल तो क्या दुनिया के किसी सुपर पावर की ताकत नहीं होगी कि किसी अहले ईमान पर वो नाजायज तरीके से जुल्म करे या उसकी ज़मीन पर कब्जा करे या उसको मारे या उसको ख़त्म करे। इसलिए अब तमाम लोगों को चाहिए, तमाम इस्लामी मुल्कों को चाहिए कि वो हर तरह से फ़लस्तीनियों की हिमायत करे, मजलूमों की मदद करे, वरना अल्लाह के दरबार में तुम्हारी छूट किसी भी हाल में नहीं होगी, पकड़े जाओगे और जहन्नम का ईंधन बनोगे। क्योंकि अभी भी खबरें आ रही है कि गुज़िश्ता रात भी बाकायदा इजरायली आतंकवादियों ने फ़लस्तीन पर हमले किए और बताया जा रहा है कि कमांडर समेत इजरायली फौजी कार्रवाई में कमांडर समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। मगरबी किनारे के शहर नाबलस में इजरायली फौज की कार्रवाई में फ़लस्तीनी कमांडर समेत 2 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की फिर खबरें आ रही है। आइए दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। अल कायदा के रहनुमा ऐमन अज़्ज़वाहिरी की हलाकत को लेकर। जी हाँ, अमेरिका ने उनको मारने का दावा किया है, लेकिन अभी भी तालिबान रहनुमा और तालिबान लीडरान इसको नहीं तस्लीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐमन अज़्ज़वाहिरी की हलाकत का दावा अब तक सिर्फ दावा ही है। तालिबान का तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान सामने आ गया। मकामी चैनल से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐमन अज़्ज़वाहिरी की मौत के हवाले से दावा सिर्फ दावा है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इमारात इस्लामिया को ऐमन अज़्ज़वाहिरी की मौजूदगी की कोई खबर नहीं थी और नहीं उनके ड्रोन के हमले में निशाना बनने का भी इल्म। तालिबान तर्जुमान का कहना है कि इमारत इस्लामिया की जानिब से ये मामला ज़ेर तहक़ीक़ है, अफगान सरजमीन की हुदूद की पामाली की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि काबुल ड्रोन हमला दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। इस तरह के वाक़यात बार बार अगर दोहराए गए तो फिर अमरीका नताइज का जिम्मेदार होगा। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि अल-कायदा के रहनुमा ऐमन अज़्ज़वाहिरी को अमरीकी ड्रोन हमलों में हलाक किया गया था, ऐसा अमरीका का दावा है, लेकिन तालिबान रहनुमा अभी भी इसे सिर्फ दावा ही मान रहे हैं, तहकीक नहीं है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि ऐमन अज़्ज़वाहिरी ने उसामा बिन लादेन के इंतकाल के बाद 2011 में अल-कायदा की कमान संभाली थी। ऐमन अज़्ज़वाहिरी की गिरफ्तारी में मदद करने पर अमेरिका ने $25 मिलियन का इनाम मुकर्रर कर रखा था। आइए नाज़रीन, चाइना और ताइवान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका की एक आला अधिकारी ने ताइवान का दौरा किया तो चाइना बरहम हो गया, गुस्सा हो गया, अमेरिका को वार्निंग दी। अब खबरें आ रही है कि ताइवानी वज़ीर ख़ारिजा ने यह कहा है कि चीनी फौजी जो मशक़ें हैं वो ताइवान पर हमले के मंसूबे का हिस्सा है। ताइवानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ताइवान के अतराफ चीनी फौजी मशक़ें ताइवान पर हमले के मंसूबे का हिस्सा है। चीन का इरादा खित्ते और आबनाए ताइवान की मौजूदा हैसियत को तब्दील करना है। उनका कहना था कि चीन फौजी मशक़ों, साइबर हमलों और माशी जबरों से ताइवानी अवाम का हौसला कम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब चीनी हुक्काम ने ताइवानी वज़ीर ख़ारिजा के इस बयान को हक़ाइक़ के मुनाफ़ी करार दिया है। आइए नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि रशिया ने यूक्रेन में फौजी चैलेंज का तोड़ करने के लिए एक नई फौज तश्कील दे दी है। रशिया ने यूक्रेन में अपनी जंगी कार्रवाई को मुअस्सिर बनाने के लिए नई ज़मीनी फौज बना ली है। इस बारे में बरतानवी फौज के ट्विटर के जरिए सामने आने वाली इंटेलिजेंस बुलेटिन में ये बताया गया है। ये बात तकरीबन यकीन की हद तक कही जा सकती है कि रशिया ने एक नई फौज तश्कील दी है। इंटेलिजेंस बुलेटिन के मुताबिक इस नई फौज के तश्कील का मकसद यूक्रेन में अपनी पहले से बरसरे पैकार फौज को ऑपरेशनल सपोर्ट देना है, ताकत देना है। बरतानवी इंटेलिजेंस ब्रीफमैन ने मजीद ये भी कहा कि यह नई फौज तीसरी आर्मी कोर पर मुश्तमिल है। यह नई फौज रूसी शहर में मौजूद है जो मॉस्को के मशरिक में वाक़ है।
यानी अफगानिस्तान को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान का जो हाल हुआ था वो आपको सबको मालूम है, किस तरीके से 20 साल तक वो दुनिया की सुपर पावर ताकतों से सिर्फ ईमान की ताकत पर लड़ते रहे। कोई हथियार नहीं, कोई फौज नहीं, कोई तैयारी नहीं, लेकिन उनका ईमानी पावर ऐसा कि 20 साल में भी अमेरिका जैसे सुपर पावर ताकत को झुंझुना मिला और चूहे की तरह वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। खैर, उस वक्त जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो उस वक्त को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि तालिबान के काबुल पहुंचने की इत्तला ने ही हजारों लोगों को उजलत में जल्दी में अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अफगानिस्तान का सबसे अहम और बड़ा काबुल एयरपोर्ट तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अमरीकियों और अमेरिका के हामी अफगानों की अफरा तफरी में काबुल से निकल भागने की अलामत बन चुका है। दसियों हजार अफगानी मर्द, औरतें और बच्चे एक साल पहले 15 अगस्त को इस काबुल एयरपोर्ट की तरफ सरपट दौड़ रहे थे। वो काबुल पर तालिबान के कब्जे से बौखलाकर ऐसा करने पर मजबूर हुए थे। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।